आज हमें एक और एग्जांपल सॉल्व करनी है गॉस जैकोबी और गॉस सीडल मेथड के हवाले से। यानी हम किस तरीके से जो है वो गॉस सीडल मेथड या गॉस जैकोबी मेथड किसी और क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज इफ यू हैव 3x प्लस 4y माइनस 2z, या इसको खाली z कर लें। मैं असल में कुछ और भी बताना चाह रहा था यहाँ पर, इसलिए कि माइनस z इक्वल टू 7, 8x प्लस 2y plus 3z equal to 9. Similarly, x plus 3y minus 7z equal to minus 2. Now you can see here that these equations are not diagonally dominant. Right now it's not diagonally dominant nor it's strictly dominant. There is no dominancy criteria of following here in this equation. So you have to apply, if you have to apply a Gauss-Jacobi method और गॉस सीडल मेथड, देन गॉस जैकोबी एंड गॉस सीडल दोनों मेथड आज हम अप्लाई करेंगे। तो दोनों मेथड से जो है वो अप्लाई करने के बाद आपके पास क्या रिजल्ट आता है ये हमें देखना है, ठीक है। सो फॉर एप्लीकेशन ऑफ द गॉस जैकोबी मेथड, और इसमें क्राइटेरिया कुछ इस तरह रख लेते हैं, परसेंटेज रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट एरर शुड बी लेस देन 0.001%, ठीक है। सो इफ यू स्टार्ट विद गॉस जैकोबी मेथड, गॉस जैकोबी मेथड अप्लाई करने से पहले योर इक्वेशंस मस्ट बी in a diagonally dominant or strictly dominant. Criteria is basically for the convergence is strictly dominant, but at least the system must be diagonally dominant for the application of that Gauss-Jacobi method. Remember that if the equations are not convertible to a diagonally dominant system, यानी अगर मुमकिन ही नहीं है after interchanging of any of the rows, there is no possibility of making the system into a strictly dominant or diagonally dominant system, then you will have to start the application of the Gauss-Jacobi method regardless of having a conclusion of the convergence. यानी let's suppose एक सिस्टम है जो कि मुमकिन ही नहीं है, हमने इंटरचेंज कर करके देख लिया, बहुत दफ़ा इंटरचेंज करके देख लिया, बहुत सारी इक्वेशंस को जितनी पॉसिबिलिटीज थी सब चेक करके देख लिया, लेकिन स्टिल इट्स नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर सिस्टम टू अ स्ट्रिक्टली डोमिनेंट और अ डोमिनेंट सिस्टम। देन वी विल नॉट से कि हम अप्लाई ही नहीं कर सकते Gauss-Jacobi मेथड। नो, वी कैन अप्लाई द Gauss-Jacobi मेथड, बट वी विल बी नॉट श्योर अबाउट इट्स कन्वर्जेंस, ठीक है। although the system that is written here can be converted to a diagonally dominant system, as you can see here. If I just interchange the row number 2 and row number 1, okay, if I just interchange the row number 2 and row number 1, or you can say the second equation interchange with the first equation, you will have the system as 8x plus 2y plus 3z equal to 9. Similarly, the second equation will become 3x plus 4y minus z equal to 7. Similarly, x plus 3y minus 7z equal to minus 2. So in that case, अगर आप देखें तो ये सिस्टम अभी भी स्टिल strictly dominant नहीं है. Why is it's not strictly dominant? Because the coefficient of x is greater than, you can see in the first equation that the coefficient of x is greater than the sum of the rest of the coefficient in a row, ठीक है। And in the third equation, the coefficient of z is greater than the sum of the coefficient of x, and x का coefficient 1 है, and the coefficient of y, rest of the coefficient. But the coefficient in the second equation is not greater than, it's basically equal to the sum of the coefficient of the rest of the that are appearing in a row. So you can see here कि ये प्लस होगा, सॉरी प्लस, और एब्सोल्यूट में -1 आएगा, तो एब्सोल्यूट ऑफ -1 is 1, 3 plus 1 is 4, 4 will be equal to 4. Due to this condition, we say the system is only for this one. We will say the system is diagonally dominant. This system is diagonally dominant. Since the system is not strictly dominant, so we can say कि ये अभी हमें convergence की surety नहीं है. This system might diverge. In some scenario हो सकता है कि ये diverge कर जाए, ठीक है। Now अब अगर मैं इन इक्वेशंस को दोबारा से लिखूं इसी तरतीब में, लेट्स सपोज के मैं दोबारा लिख रहा हूँ 8x plus 2y plus 3z equal to 9, 8x plus 2y plus 3z equal to 9, ये पहली इक्वेशन है।
Second equation is 3x plus 4y minus z equal to 7. 3x plus 4y minus z equal to 7. And the last equation is x plus 3y minus 7z. x plus 3y minus 7z equal to -2। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ठीक है अप्लाई तो कर सकते हैं, डायगोनली डोमिनेंट हो, पार्शियली डोमिनेंट हो, या डोमिनेंट इन आवर सिस्टम, वी कैन अप्लाई we can apply the Gauss-Jacobi and Gauss-Seidel method. So from the first equation I can evaluate the value of x. If I am evaluating the value of x, it will be x that is equals to 1 divided by 8 of 9 minus 2y minus 3z। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी। और फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन वी कैन इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ y एज y विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 7 minus 3x plus z। ठीक है। Similarly, from the third equation we can evaluate the value of z as minus 1 divided by 7 equals to into minus 2 minus x minus 3y। So these are the separation of the variable. From the equation 1 we separate the x, from equation 2 we separate y, from equation 3 we separate z. Why we are separating this? So that we can apply the iterative scheme, so that we can make an iterative scheme and then apply that particular iterative scheme for this for the solution of system of linear equation. So यहाँ iterative scheme क्योंकि हमें गॉस जैकोबी की रखनी है, तो मैं जैकोबी के लिए यहाँ लिख रहा हूँ इस तरह से xi plus 1, that is the new value of xi can be evaluated by using the old value of y and z। ठीक है। Similarly, the new value of y can be evaluated by using the old value of x and z। यहाँ i लिख रहा हूँ, अगर i लिखेंगे तो old value या previous value कह लें, और i plus 1 means a new value। So zi plus 1 can be evaluated, the new value of z can be evaluated by using the old value of x and y। तो ये आपके पास स्कीम बन गई करंटली गॉस जैकोबी की। गॉस जैकोबी की स्कीम के साथ साथ अब हमें करना क्या है कि क्योंकि परसेंटेज रिलेटिव अप्रोक्सीमेट एरर का क्राइटेरिया है, तो आप क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से आपने कॉलम बनाया। फिलहाल लेट सपोज कि आपने आई के लिए लिखा यहाँ पर, और फिर उसके बाद यहाँ एक कॉलम बना लिया आपने xi plus 1, xi plus 1। फिर क्योंकि परसेंटेज रिलेटिव अप्रोक्सीमेट एरर ऑफ xi plus 1 यानी x के परसेंटेज रिलेटिव अप्रोक्सीमेट एरर, ये आपको कैलकुलेट करना है, तो ये देखेंगे। फिर इसी तरीके से परसेंटेज रिलेटिव, सॉरी परसेंटेज नहीं, अब y के लिए कॉलम बनेगा आपके पास यहाँ पर, y के लिए कॉलम आपके पास हो जाएगा yi plus 1। फिर सिमिलरली देयर विल बी द नेक्स्ट कॉलम फॉर परसेंटेज रिलेटिव अप्रोक्सीमेट एरर फॉर ऑफ y। ठीक है। Similarly you will make a column for zi plus 1 and then a column for percentage relative approximate error of z। आज काफी टेढ़ा मेढ़ा हो गया, जरा ये सही से बनाइएगा आप अपने पास। तो बहरहाल अब अगर हम देखें यहाँ पर कि हम पहली वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं। पहली वर्किंग स्टार्ट करने के लिए जैकोबी मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि आप कैलकुलेटर में, अब ये वर्किंग आप खुद करेंगे। ठीक है, मैं फर्दर कंप्लीट नहीं करवा रहा क्योंकि हम ये पहले देख चुके हैं। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आप कैलकुलेटर में लिखेंगे, किस तरह लिखेंगे, 1/8 इंटू 9 माइनस 2y माइनस 3z, ये आप लिख लेंगे, और फिर उसके बाद कैल्क का बटन प्रेस कर लेंगे। ये कैलकुलेटर की वर्किंग बता रहा हूँ। कैल्क का बटन प्रेस करेंगे तो वो आपसे y की वैल्यू पूछेगा और z की वैल्यू पूछेगा। ठीक है। फिर हमें क्या करना है, फिर हम जो है वो y की वैल्यू, मतलब ये जब आप दे देंगे इनिशियली 0 0 दे देंगे, क्योंकि इनिशियल वैल्यू जो है वो 0 0 हम सपोज करते हैं। यहाँ पर हमेशा स्टैंडर्ड ये है कि अगर गिवन ना हो तो आप y की वैल्यू भी 0 लेंगे, x नॉट की वैल्यू भी 0 लेंगे और z नॉट की वैल्यू भी 0 लेंगे। तो ये 0 0 देने के बाद आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आएगी 9 डिवाइडेड बाई 8। अगर आप देखें यहाँ पे डायरेक्टली पहली आइट्रेशन के अंदर, पहली आइट्रेशन में 9 डिवाइड बाई 8 आंसर आएगा, तो मे बी कि ये इक्वल हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 8। आप देख लें किसमें किसके इक्वल आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू।
1.1 और 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस ले लें। आगे जितना भी है जो आंसर आ रहा है वो आप लोग कंप्लीट लिख लीजिएगा। इसी तरीके से फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो कैलकुलेटर में लिखेंगे। AC का बटन प्रेस करने के बाद कैलकुलेटर में y की इक्वेशन लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 4 7 माइनस 3x प्लस z। ये लिखकर कैल्क का बटन अगेन प्रेस करेंगे। जब कैल्क का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास वो पूछेगा x की वैल्यू क्या है और z की वैल्यू क्या है। तो आप x की वैल्यू भी इनिशियली 0 देंगे, z की वैल्यू भी इनिशियली 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर उसके बाद जो है वो इवैल्यूएट करेंगे फर्दर इसी तरीके से। अच्छा, इसी तरह फिर आप जब z के लिए कर रहे होंगे तो z के लिए भी अगेन वही AC का बटन प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद वर्किंग स्टार्ट करेंगे आप कि आप जो है वो यहाँ से लेकर -1/7 से लेके यहाँ तक पूरी इक्वेशन ये लिखेंगे। यहाँ तक लिखने के बाद जो है वो आप अगेन वही कैल्क का बटन प्रेस करेंगे। कैल्क का बटन प्रेस करने के बाद आपसे वो पूछेगा x और y की वैल्यू। x और y की वैल्यू इनिशियली क्योंकि 0 0 है, आप 0 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसी तरीके से आपके पास फाइनली z का आंसर भी आ जाएगा। तो पहली इटरेशन की वैल्यू जरा जल्दी से मुझे बता दें क्या क्या आ रही है, चैट में बता दें। x की, y की और z की वैल्यू। कैलकुलेटर है आप लोगों के पास? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव एन आर्ग्यूमेंट कि सर हमारा कैलकुलेटर एक्सक्यूज के सर हमारा कैलकुलेटर घर पे है। तो आप लोग भी घर पे है ना, सारे के सारे घर पे हैं, तो अब तो कैलकुलेटर सबके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, ज़रा जल्दी से बता दें प्लीज़, ताकि ये रिकॉर्डिंग जो है वो छोटी से छोटी रहे। हाँ भी हमजा, क्या रिजल्ट आ रहा है XYZ का? जी जी जल्दी कर लें, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर लेता हूँ सॉरी। सर जैम्बो की स्क्रीन शेयर कर दिएगा। जैम की भी स्क्रीन तो शेयर हुई थी ना, स्क्रीन तो मैंने तमाम शेयर करी है प्रेजेंटेशन में, ये देख लें शेयर्ड है। हाँ सर मीट नजर आ रहा है, जैम्बो बंद हो गया शायद, वो जो इक्वेशन थी ना इसी। कैसे हो सकता है? एक मिनट हाँ अब आ देखें, गया। जी आ अब। गया। ठीक। सर जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो हम x की वैल्यू 1.1 डालेंगे? नहीं 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 नहीं, जीरो ही डालेंगे नहीं, इनिशियली। अच्छा देखिए 0 यही तो काम है जैकोबी का काम। अब देखिए सीडल से आप लोग वो ना करें ना, जैकोबी के अंदर तो ओल्ड वैल्यू ही रखते हैं। जैकोबी के अंदर जो है अच्छा वो ओल्ड वैल्यू रखते हैं, तो इसीलिए हम प्रीवियस वैल्यू जीरो ही रखेंगे। ओके सर। मेरा कैलकुलेटर असल में यूनिवर्सिटी के अंदर रह गया, लिहाजा मैं इसलिए कैलकुलेट नहीं कर पा रहा यहाँ पे, वरना इतना टाइम तो नहीं लगता यार कैलकुलेट करने में। 9 डिवाइड बाई 8 आपके पास आंसर यार, मैं यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ। चलो फर्स्ट आपका आ जाता 9 डिवाइड बाई 8 का आंसर 4 डेसिमल तकरीबन 1.125 आंसर आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद आता 7 डिवाइडेड बाई 4, सिंपल है। 7 डिवाइड बाई 4 का आंसर आपके पास आ जाता 1.75। ठीक है, तो 1.125 और इसका आंसर आपके पास आ रहा है 1.75 और z का आंसर आ जाता माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, अगर माइनस माइनस प्लस हो जाता है 2 डिवाइड बाई 7, 2 डिवाइड बाई 7 भी का आंसर। ठीक है, तो 0.2857 आ रहा है, मैं 4 डेसिमल बेसिस ले रहा हूँ। 0.2857 डाउन। अब क्या करेंगे,
अब आप अप एरो की यूज़ करते हुए, अप एरो की कैलकुलेटर के अंदर जो गिवन है वो यूज़ करते हुए आप इस इक्वेशन तक पहुँचेंगे। इस इक्वेशन पे पहुंचने के बाद यानी यहाँ तक आप पहुंच जाएंगे 1/8 वाली इक्वेशन तक, और फिर उसके बाद दोबारा से ही अप्लाई करेंगे। अब जो वैल्यूज देंगे वो जब आप x की वैल्यू वैल्यूएट कर रहे हैं तो y और z आप देंगे ये वाला 1.75 और 0.2857। ठीक है। सिमिलरली जब आप y की वैल्यू दे रहे होंगे तो फिर x और z की वैल्यू आप 1.125 और 0.2857 ये वैल्यू स्टोर कराएंगे। ठीक है। सिमिलरली ये कंटिन्यू करें जरा प्लीज, आइट्रेशन, नेक्स्ट आइट्रेशन कंटिन्यू करें। एक आइट्रेशन और कर लें जी, तीनों तीनों जीरो डालेंगे फर्स्ट टाइम में, जो है वो तीनों वैल्यू जो है वो आप जीरो देंगे। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस आइट्रेशन को यूज कर रहे हैं। अब क्या होगा, अब देखें, अब आपको अब जो भी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, चाहे आप x कैलकुलेट कर रहे हो, यानी आप अगर यहाँ x कैलकुलेट कर रहे हैं तो x कैलकुलेट करने के लिए आप y और z जो है वो प्रीवियस देंगे, यानी 1.75 और 0.2857 ये देंगे। सिमिलरली जब आप y कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आप x और z ये प्रीवियस देंगे। इसी तरीके से जब आप z कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आप x और y की वैल्यू जो है वो प्रीवियस वैल्यू जो भी होगी वही दे रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंप्लीट करें। सर x की वैल्यू आ रही है 0.580। x की वैल्यू क्या आ रही है? 0.580। 580। ठीक है, और y की? वो अभी निकाल रहा हूँ। ठीक है, निकाल रहे हैं। भैया खाली एक स्टूडेंट नहीं बताया, बाकी भी बैठे हैं, बाकी भी बताएं। क्लास प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं, ऑनलाइन के अंदर तो वैसे ही आप लोग देखेंगे क्राइटेरिया कितने टफ कर दिए जा रहे हैं, अब तो बहुत ज़्यादा टफ हो रहे हैं क्राइटेरिया। और ये ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कि आने वाली क्लासेस के अंदर आप लोगों की कैमरा वगैरह सब कुछ ऑन करके रखना पड़े। ठीक है ना, तो ये रिक्वायरमेंट है, ये मैनेजमेंट की तरफ से रिक्वायरमेंट आएगी है। तो आप लोग जो है ना, ये जो सो जाते हैं ना, लॉग इन करके ऑफिस सो जाते हैं ज्वाइन करके, ये जो है चलेगा नहीं फिर। ठीक है सर y की वैल्यू है 0.977 978 0.978। आगे कुछ नहीं है, 3 डेसिमल प्लेस है, 4 ले रहे हैं? नहीं 3 ले रहा हूँ। 0.9776 था तो अच्छा उसको ठीक है, 978 नहीं 9776 ही ले लो, 4 डेसिमल प्लेस है। जब अच्छा परसेंटेज रिलेटिव वाला क्राइटेरिया होता है तो हमारे स्टैंडर्ड ये है कि 4 डेसिमल प्लेसेस आप लेंगे। सर ये टोटल आ रहा है 0.977675 ओके, 0.977 675। 7, तो ये 777 ही आएगा। यानी अगर आप अपने कैलकुलेटर को फिक्स करेंगे 4 डेसिमल प्लेसेस पे तो ये आएगा। ओके इसी तरीके से जेड का ही बता दें। एक सेकंड। फिर Z 1.1964 1.1964। ठीक है, अब बस इसी तरीके से आप कंटिन्यू रखेंगे। अब देखें होगा क्या कि यहाँ पर तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते परसेंटेज रिलेटिव अप्रोक्सीमेट एरर, लेकिन यहाँ के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ के लिए आप कैलकुलेट कर लें, उसका फॉर्मूला भी आप कंप्यूटर में उसमें कैलकुलेटर में सेव कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि क्योंकि आप अगर एक ही कैलकुलेटर से वर्किंग कर रहे हैं तो कैलकुलेटर के अंदर पहले एक्स वाई जेड की वैल्यूज कैलकुलेट करते रहें अपनी आराम से, जिस भी तरतीब से आप करते रहे थे उसी तरीके से आप करते रहें। फिर उसके बाद लास्ट में जो है वो आप जहाँ देखें कि हाँ कुछ कन्वर्जेंस आ रही है, फिर आप परसेंटेज रिलेटिव अप्रोक्सीमेट एरर वगैरह वैल्यू करें। ठीक है, अच्छा अब मैं यही काम करने जा रहा हूँ। यही दोबारा इक्वेशन हम सपोज करते हैं और गॉस सीडल मेथड की स्कीम उसके लिए बनाते हैं। तो गॉस सीडल मेथड की स्कीम के लिए हम क्या काम करेंगे कि पहले तो दोबारा इक्वेशन लिखता हूँ मैं। इक्वेशन आपके पास है 8x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 9 प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 9। ये है सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 4y माइनस z इक्वल टू 7, z इक्वल टू 7 इक्वल टू है। Similarly, x plus 3y minus 7z equal to minus 2. X plus 3y minus 7z equal to minus 2। तो ये इक्वेशन है, सेम वही हम काम करेंगे कि इससे x वैल्यूएट करेंगे,
एक्स इवेल्यूएट आपने किया 1/8 और ये हो जाएगा 9 माइनस 2y माइनस 3z। फिर उसके बाद आपने इस इक्वेशन से y इवेल्यूएट किया, y इवेल्यूएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 7 माइनस 3x प्लस z। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन से आप z इवेल्यूएट करेंगे तो z हो जाएगा 1/7 माइनस का और -2 माइनस एक्स माइनस 3y। और क्योंकि अब हम जो है वो गॉस सीडल मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं यहाँ पर, तो गॉस सीडल मेथड के लिए आइटरेटिव स्कीम जो है वो आपके पास कुछ इस तरह बन जाएगी। आइटरेटिव स्कीम में द न्यू वैल्यू ऑफ x कैन बी evaluated by using the old value of y and z. There is no new value of y and z in an iteration. Right now हमारे पास y और z की वैल्यू नहीं है, so we can say कि x की वैल्यू जो है वो सिर्फ ओल्ड वैल्यू ऑफ y और z से आएगी। हाँ, जब आप y की वैल्यू इवैल्यूएट कर रहे हैं सो यू हैव अ चॉइस कि x की ओल्ड वैल्यू यूज करें या न्यू वैल्यू यूज करें। तो गॉस सीडल ये कहता है कि आप न्यू वैल्यू यूज करें, ठीक है, विद अजम्पशन के हर न्यू वैल्यू के अंदर क्योंकि एरर कम हो रहा होता है, तो उसकी अजम्पशन ये थी इसकी इस तरीके से जो है, क्योंकि नई वैल्यू के अंदर एरर कम है और हम उस वैल्यू यूज करेंगे तो जाहिर है वाई का आंसर बेटर आ सकेगा, ठीक है, ये अजम्पशन है। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा बेटर आ रहा है या आएगा। इसी तरीके से zi+1 और इसके अंदर क्योंकि आपके पास x की ओल्ड वैल्यू भी है न्यू वैल्यू भी है, तो हम यहाँ पे न्यू वैल्यू ही यूज करेंगे। इसी तरीके से y की ओल्ड वैल्यू भी है न्यू वैल्यू भी है, तो आप इसकी y की न्यू वैल्यू ही यूज करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे। कैलकुलेटर में जो वर्किंग है, कैलकुलेटर की वर्किंग इस सीडल के लिए आसान है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हम जैकोबी में देखें हम ना खाली ये वाला पार्ट लिखते हैं 1/8 वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखते हैं, लेकिन सीडल के अंदर आप पूरा लिखें। सीडल में आप लिखें x दैट इज इक्वल्स टू x भी लिखें, इक्वल टू भी लिखें, 1/8 लिखेंगे, 9 माइनस 2y माइनस 3z लिखेंगे और फिर कॉलन का बटन प्रेस करेंगे, यानी कॉलन जो है वो आप लिखेंगे और फिर उसके बाद y लिखेंगे। y इक्वल टू 1/4 7 माइनस 3x प्लस z। अच्छा z तो होगा नहीं कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर में z की जगह आप m लिखेंगे। इसी तरीके से फिर कॉलन का बटन यूज करेंगे, कॉलन के बटन के साथ z दैट इज इक्वल टू -1/7 इंटू -2 माइनस एक्स माइनस 3y, ये आप लिख देंगे, ठीक है। और फिर अब जाके आप कैल्क का बटन प्रेस करेंगे। जब ये पूरी तीनों इक्वेशन लिख लेंगे तो कैल्क का बटन प्रेस करेंगे, तो कैल्क के बटन में वो x कैलकुलेट करने के लिए आपसे y और z पूछेगा, तो y आप दे देंगे 0 और z आप इनिशियली दे देंगे 0। फाइन, जब आप x और y और z दे देंगे तो x उसका ओवरराइट हो जाएगा। देखें x पहले इसके मेमोरी के अंदर अगर आप कहें कि 0 स्टोर हुआ भी होगा, वैसे तो नहीं हुआ, लेकिन चलें x ओवरराइट हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 9/8 वाली 1.125 जो आई थी आपके पास, वो आंसर आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से अब जब वो आप y कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो उसे x और z चाहिए, तो वो अब आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। x वो यहाँ से पिक कर लेगा और z तो आपने पहले ही स्टोर कर दिया था, ठीक है, तो वो x और z की वैल्यू पूछेगा नहीं, वो डायरेक्टली यहाँ पर जो है वो सब्स्टिट्यूट करेगा और y की वैल्यू आपको बता देगा। इसी तरीके से फिर जब z कैलकुलेट करने जा रहा है तो वो x और y की वैल्यू भी अगेन आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि x की वैल्यू वो यहाँ से पिक कर लेगा जो ओवरराइट हुई थी और y की वैल्यू भी जो ओवरराइट हो गई। देखिए y की वैल्यू एक ये वाली भी स्टोर हुई है y इक्वल टू 0, लेकिन वो ये नहीं करेगा क्योंकि y की वैल्यू अब ओवरराइट हो चुकी है, y की वैल्यू अब ये वाली बन चुकी है आपके पास y इक्वल टू 1/4 से जो आई थी, तो अब वो x और y की वैल्यू पूछेगा नहीं, डायरेक्टली z की वैल्यू कैलकुलेट करके आपको दे देगा। अब आप क्या करेंगे, अब अगेन इक्वल प्रेस कर दें, इक्वल 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 बटन आप प्रेस करते रहेंगे। इक्वल का बटन जब आप प्रेस करेंगे तो वो आपसे अब अगेन x का कैलकुलेट करने के लिए स्क्रीन शो नहीं हो रही, क्यों भाई? स्क्रीन तो शो हो रही है, सब कुछ हो रही है स्क्रीन। यस सर, शो हो रही है। शहीर आप रिलोड करें प्लीज, रिलोड करें, जिनकी स्क्रीन मेरे पास तो नहीं हो रही है, यानी मेरी तरफ से कोई मसला हुआ होगा। एक मिनट, ये अक्सर होता रहता है गूगल मीट के अंदर जो है ना। तो अब ये मैंने रिलोड किया है, अगेन मैं प्रेजेंट को कर देता हूँ स्क्रीन। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये नेट की वजह से, हाँ हो सकता, पता नहीं वाला। मेरे पास ये अक्सर अभी सुबह वाली क्लास में मेरा नेट बहुत अच्छा चलता है, लेकिन सुबह वाली क्लास में ये हो रहा था कि स्टूडेंट की आवाज़ मेरे पास नहीं आ पा रही थी, मेरी आवाज़ सबके पास जा रही थी। हाँ, तो ये स्क्रीन में शो कर रहा हूँ अगेन। तो आप क्या करेंगे, आप ये लिखने के बाद इक्वल इक्वल प्रेस करेंगे। देखें इक्वल प्रेस करेंगे, जब वो नेक्स्ट आइटरेशन के लिए x कैलकुलेट कर रहा होगा तो नेक्स्ट आइटरेशन के लिए फाइन वो आपसे y और z पूछेगा, तो
लेकिन y और z उसके पास पहले से स्टोर हुआ है, तो वो आपको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। आप इक्वल का बटन दोबारा 2 मरतबा प्रेस करेंगे, तीसरी मरतबा में वो आपको x के आंसर दे देगा, फिर y और z का आंसर दे देगा। फिर दोबारा नेक्स्ट आइटरेशन पे आएंगे तो वो आपसे y और z की वैल्यू देगा, लेकिन y और z दोबारा आपको देने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि उसकी मेमोरी में स्टोर हुआ है। यानी फर्स्ट टाइम आप उसको 0 और 0 वो जो देना था वो दे दें, नेक्स्ट टाइम जो है दोबारा देने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये थी गॉस सीडल वगैरह की स्कीम। गॉस जैकोबी और गॉस सीडल के अंदर इस तरीके से वर्क करते हैं। जरा जल्दी से ये स्टोर करा के जरा मुझे बता दें आइटरेशन क्या क्या है। सर रिमेंबर दैट कि ये तो हम ऑनलाइन क्लास के अंदर भी पढ़ रहे हैं, लाइव सेशन के अंदर मैं पूरा सॉल्व करवा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन इट्स बेटर कि अगर आप वो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो गॉस सीडल और गॉस जैकोबी के बने हुए हैं वो भी ज़रूर देखें। ठीक है, उसमें भी बहुत सारी बातें क्लियर होंगी, क्योंकि लाइव क्लास के अंदर, ऑनलाइन क्लास के अंदर, क्योंकि आपको हो सकता है राइटिंग का मसला हो रहा हो, जैसे ये इशू आ रहा हो कोई ना कोई कि सर ये डिस्टर्बेंस है, कभी आवाज़ नहीं आ रही वगैरह वगैरह, ये कुछ हो सकता है। लेकिन उस क्लास के अंदर जो है फिर उसमें कुछ नहीं होगा, और उसमें ज़्यादा एग्जाम्पल्स मैंने सॉल्व की हुई होंगी। कैलकुलेटर के अंदर किस तरीके से स्टोर करना है वो भी मैंने कैप्चर किया होगा, क्योंकि वो कैमरा से बनाया हुआ है ना। अब यहाँ पर तो मैं कैलकुलेटर से स्टोर करके नहीं दिखा सकता आप लोग कि आप लोगों की कैलकुलेटर में किस तरीके से स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा। जी कैलकुलेट किया आप लोगों ने? सर ये पूरी चीज एक लाइन में लिखनी है हमने? बिल्कुल पूरी चीज एक लाइन में लिखनी है, एग्जैक्टली ऐसे ही ओ, लिखनी है, एक्स इक्वल टू भी लिखना है और पूरी एक ओके। लाइन में लिखनी है कॉलन के साथ। टाइम लग रहा है आप लोगों को लिखने में? ये सर बस 2 मिनट। फिर x9 आ रहा है। एक मिनट रुकिएगा, मैं स्क्रीन जो है वो बोर्ड दूसरा ओपन कर लूँ। जी बताइएगा यहाँ पे कि एक्स की वैल्यू अब आपके पास आ रही होंगी। जी बताइए बताइए। 9.00। 9.0? ये कैसे हो सकता है? एक्स इनिशियल वन एक्स की पॉइंट वैल्यू, वन टू फाइव आ रहा हाँ 1.1.25 है इनिशियली, तो एक्स की वैल्यू तो सेम ही होगी, वो जो जैकोबी में थी वही होगी यहाँ पर भी। अब इस तरीके से परसेंटेज रिलेटिव अप्रोक्सीमेट एरर का फॉर्मूला है, और फिर उसके बाद वाई का फॉर्मूला आएगा। वाई की वैल्यू बताइए क्या आ रही है? अब तो y इक्वल इक्वल सेम है प्रेस, सर 1.7500। 1.75 है परसेंटेज रिलेटिव अप्रोक्सीमेट एरर ऑफ, वैसे सेम होना तो नहीं चाहिए था। देखें चलें सर, जेड की वैल्यू बताइए। सर वाई की वैल्यू मेरे पास 0.906 आ रही
जी बिल्कुल चेंज आएगी वैल्यू, बताइए क्या ये 0.90625। 625, सो 62 फिक्स करें ना, कैलकुलेटर को फिक्स भी करें 4 पे, ताकि अच्छा 4 डेसिमल प्लेसेस ही आपको हमेशा शो। जेड की वैल्यू बता दें। 0.8348। 8348, ओके। फॉर द नेक्स्ट आइटरेशन जस्ट इक्वल इक्वल प्रेस करें और जल्दी जल्दी वैल्यूज बताएंगे। सर प्लीज इसको एक दफा रिपीट कर देंगे, आप किस तरह से कैलकुलेटर में पुट करनी है? कैलकुलेटर में जिस तरह मैंने ये लाइन, ग्रीन लाइन लिखी हुई है ना पूरी, यहाँ पर एरो जहाँ पे मैंने शो किया है, ये रहा, ठीक है। ये बिल्कुल एज इट इज ऐसे लिखे, एक्स इक्वल टू 1/8 9 - 2y - 3z, फिर कॉलन का बटन, फिर y इक्वल टू 1/4 एंड सो। इसी तरीके से ये पूरा शो करेंगे आप, इसी तरीके से जैसा है वैसे ही लिखें जिस तरह मैंने यहाँ पे शो किया हुआ, ओके ओके। ठीक है। और फिर उसके बाद कैलक का बटन प्रेस करेंगे तो y और z की वैल्यू 0 0 दे देंगे। सर नेक्स्ट वैल्यू बताऊं? जी जी बताइए प्लीज। 0.5853। 5853 इक्वल करके ये वाली वैल्यू बताएं। 1.5196। 59 5196। 5196, ओके। फिर z की वैल्यू 1.020। 02, 0.021। सॉरी दोबारा बोलिएगा। 1.0206 था, तो उसको फिर राउंड ऑफ करके 1.021 हो जाएगा। 021 नहीं, तो कैलकुलेटर को आप 4 पे फिक्स कर लेना एक दफ़ा, बार बार फिर कोई इशू नहीं आएगा। चलें बहरहाल अभी कंटिन्यू करें, अभी कंटिन्यू करें। अभी अगर आपने फिक्स करना है तो हो सकता है वो फिर उसकी प्रोग्रामिंग खराब हो जाए। सर उसके बाद x की वैल्यू आ रही है 0.3623। 3623, जी। वाई की 1.7333। 7333, जेड की 1.0803। 0803। यानी बस ये ध्यान में रखिएगा, देखें कि गॉस जैकोबी में आपको बैक एरो की यूज़ करते हुए प्रीवियस इक्वेशन तक जाना पड़ रहा था, जबकि जी। सीटल में बैक एरो की यूज़ नहीं करनी पड़ी। हम डायरेक्टली जो है वो इक्वल इक्वल का बटन प्रेस कर रहे हैं और आंसर आते आ रहे हैं। जी नेक्स्ट वैल्यू बताइए। 0.2865। 2865, जी। इसकी 1.8052। 8052, 1.1003। 1.1003। नेक्स्ट आइटरेशन 0.2610। 2610। देखिए यहाँ पे अब ये एक डेसिमल प्लेस करेक्ट हुआ नजर आया मुझे, पहले नजर नहीं आ रहा था। यहाँ पे आप बताएं भाई की फिर आ रहा है y 1.8292। 8292, यहाँ पे भी एक डेसिमल प्लेस करेक्ट हो गया, ठीक। जेड की 1.1069। 1069, यहाँ पर भी एक डेसिमल प्लेस करेक्ट हो गया, इत्तेफाक है। हालांकि डेसिमल प्लेस करेक्ट हमें नहीं करना, हमें तो एरर चेक करना है, ठीक है ना। एरर चेक करने के लिए यहाँ पे परसेंटेज रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट एरर ऑफ एक्स ये कैलकुलेट करना है। तो पहली वैल्यू के अंदर तो नहीं आएगा एरर, यहाँ से कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये बाद में कर लीजिएगा। जी नेक्स्ट वैल्यू बताइए। 0.2525। 2525 ये आ गया यहाँ पर, जी। 1.8373। 73, यस 8373। ठीक है। नेक्स्ट 1.1092। 1092। तो जेड देखिए दो डेसिमल प्लेस करेक्ट हुआ है, लेकिन एक्स और वाई जो है वो अभी भी एक ही डेसिमल प्लेस करेक्ट हुआ है। जी नेक्स्ट वैल्यू बताइए। 0.2497। 2497, जी। यहाँ पर 1.8400। 8400, 1.1099। 99, 99। यस। ठीक है। तो बस इसको कंटिन्यू कर लीजिएगा, यही जो है। फिर उसके बाद जो है वो हम क्या क्या करेंगे, देखें हमें मालूम है यहाँ पे एरर, एक चीज़ और समझ लें कि एरर यहाँ पे ज़ाहिर है 0.001% नहीं होगा। तो यहाँ एरर कैलकुलेट हम कर सकते हैं, लेकिन मैं ये आपको चॉइस दे रहा हूँ कि यहाँ एरर कैलकुलेट ना करें, ठीक है। यहाँ एरर कैलकुलेट ना करें, यहाँ एरर कैलकुलेट ना करें, क्योंकि हमें मालूम है 0.001% तो नहीं होगा। हाँ यहाँ चेक कर लें यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ पे एरर चेक कर लें इन दोनों का, इस पोजीशन पर
इस पोजीशन पे कितना है, इस पोजीशन पे कितना है, इस पोजीशन पे कितना है। आपने देखा अगर फर्स्ट इस पोजीशन पे अभी भी स्टिल परसेंटेज रियलिटी अप्रोक्सीमेटर एरर हमारे टॉलरेंस लेवल से बहुत दूर है, तो अब 2-3 आइट्रेशन और स्किप करके फिर एरर कैलकुलेट करते हैं। एरर हर आइट्रेशन का कैलकुलेट करना ये ज़रूरी नहीं है आपके पास, ये चॉइस मैं दे रहा हूँ। वैसे बुक के अंदर तो आपको हर आइट्रेशन का कैलकुलेट करके शो किया हुआ होगा, लेकिन आपके आपके पास चॉइस है, यहाँ पर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। So this is a Gauss-Jacobi and Gauss-Seidel method, an example of Gauss-Jacobi and Gauss-Seidel method. I am stop the recording so that I can take your attendance. ठीक है, stop कर रहा हूँ फिलहाल, यहीं तक